Assalamu alaikum dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 30. First of all, we will go through the previous lecture and we will understand what we have done until now, and then we will continue for today's lecture. In the previous lecture we learned about single layer perceptron, that if there are multiple on perceptron and we want to combine it, then we call it as a single layer perceptron, and they are used to have multiple classes, multiple data items, and then we want to separate it. Then in that situation we can use single layer perceptron. But the point which to be keep in mind is that only the problems that are separable, linearly separable, we can use single layer perceptron. And again, after that, multiple layer perceptron, we were using it for non-linear separable problems. And then we also understand that there is some problems that cannot be separated with single line, so we can use multiple layer perceptron where there are multiple layers and multiple neurons connected with each other. We had an example of XOR operator, and we executed and we come into the point that it is working very fine with the weights which were selected for that specific network. We also learned in the previous lecture that there were few problems by multiple neural network, multiple perceptron, and the problem were overfitting and underfitting. Overfitting means that when we have more layers than expected, or underfitting is when we have less layers than required one. So there is always a discussion about how many neurons should be selected and how many hidden layers there should be. So today we will learn some more things, and that is called unsupervised learning. If you remember, when we start machine learning, we learned that there were different categories. There were supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, reinforcement, and other types also. And then we start from supervised learning, and we had example of artificial neural network, and today we will learn about unsupervised learning, and then we will learn that there are different approaches, different techniques that are used for unsupervised learning, and one of it is self-organizing map, or called SOM. So these we will learn it, what they are and how they are working, and we will try to see in which kind of applications, in which kind of areas we can use it. So what is unsupervised learning? By applying unsupervised learning, trying to find hidden structure in unlabeled data. The basic point is that the data is not labeled, and if you remember, we said that the labeling means that we give some guidance to the machine what data this is, what class it belongs to, what it means. So this information is not there with the data, and we try to find out different structures inside the data. For example, we have a data and we want to find out how many classes there are, how many types there are. So this is what we call it unsupervised learning. If I take an example of face images, then if we want to find out how many people there are that they have some specific features in their face, for example, if they are teenagers, then we want to separate it. If there are above 60, then we want to separate that in another class. There are genders, male and female, so then if we want to separate it. So if these are our requirement, we want to make 4 different classes, and we don't give any information to the machine how to do it, which one is teenager and which one is aged person, then we will not give this information, and we will give only the data and ask the machine to make 4 classes.
then this machine can do it or not. So this we will call it unsupervised learning. Since the example given to the learner are unlabeled, there is no error or reward signal to the evaluate a potential solution. This distinguishes unsupervised learning from supervised learning and reinforcement learning. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम कोई डेटा के साथ एक्स्ट्रा लेबलिंग नहीं देते, कोई उसको गाइडेंस नहीं देते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते डेटा के मुतालिक। इस वजह से वो हम उसको कोई ना रिवॉर्ड देते हैं, जिस तरह रीइंफोर्स में हम करते हैं कि नॉर्मली हम उसको रिवॉर्ड देते हैं, और अगर तो वो रिज़ल्ट ठीक नहीं है तो हम फिर उसको पनिशमेंट देते हैं इस तरह की कि उसके वेट्स को चेंज करते हैं, या जो भी हम डिफरेंट अप्रोचेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होती अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। इस वजह से ये डिफरेंट है उन दोनों टाइप से, और सुपरवाइज से तो है ही डिफरेंट। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर सुपरवाइज में हम मॉनिटर करते हैं कि क्या एग्जैक्टली वो आउटपुट आ रहा है जो हम चाह रहे हैं कि नहीं। अगर तो नहीं आ रहा तो फिर हम वेट को चेंज करते हैं, उसमें वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं होता। Unsupervised learning approaches, there are a lot of approaches in unsupervised learning as it was in supervised learning. Approaches to unsupervised learning include clustering. So there is a different mechanism of clustering. What clustering is, if we want to cluster some specific kind of data with same features, then we call it that this is a clustering. Clustering में हम normally इस तरह करते हैं कि जो एक जैसे फीचर्स होते हैं डेटा के अंदर उनका एक क्लस्टर बना लेते हैं, और जो मुख्तलिफ होते हैं और आप किसी और क्लास के साथ बिलोंग करते हैं उनको दूसरी क्लास में भेज देते हैं, तो मुख्तलिफ हम क्लस्टर्स बना लेते हैं। डिपेंड करते हैं हम कितने क्लस्टर्स उस डेटा के अंदर रखना चाहते हैं, तो वो एग्जैक्टली उसी तरह डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ब्लाइंड सिग्नल सेपरेशन यूजिंग फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लाइंड सिग्नल सेपरेशन के टेक्निक्स हैं, जिसमें हम करते ये हैं कि फ़ीचर को एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं डेटा के अंदर और फिर उनको यूज़ किया जाता है। जिस तरह हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन करते हैं, PCA है, PCA हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, वो डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए यूज़ हो रहा होता है। और इस तरह के और भी हम जो ये करते हैं कि डेटा के अंदर फीचर्स देखते हैं और फिर वो जो डायमेंशंस हैं उनको रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 डायमेंशनल डेटा है, हम चाहते हैं कि उनको 3D में ले आएँ, तो उसके लिए हम उनके फीचर्स आपस में चेक करते हैं और फिर वो डायमेंशंस जो यूज़फुल नहीं होते उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। Among neural network model, the self-organizing map, SOM, and adaptive resonance theory are commonly used unsupervised learning algorithm. हम नॉर्मली जो न्यूरल नेटवर्क के लिहाज से हम देखते हैं तो हमारे पास चंद एक एल्गोरिथम्स हैं, उनमें से सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स है और ART है, अडॉप्टिव रेजोनेंस थ्योरी है। ये दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में लाई करती हैं, और ये काफ़ी फेमस है और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स यूज़ हों। अब हम जाते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप की तरफ। हम उनमें से एक को उठाते हैं, एक अप्रोच को, और उसको हम डिस्कस करेंगे जिस तरह हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग में किया। सेम इसी तरह हम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप को देखेंगे और हम देखेंगे कि इस किस तरह काम करता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। कॉनन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं और हम देखते हैं कि कॉनन इसको क्यों कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। तो नॉर्मल नाम है इसका, लेकिन बाज़ जगहों पर इसको के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और है तो ये कॉनन, और के को एक और टर्म्स में भी देखा जाता है कि के को एज ए नाइबर समझा जाता है। तो स्टार्ट में इस पे काम शुरू किया था कॉनन
प्रोफेसर थे और इस वजह से इसने बहुत ज़्यादा काम किया इसके ऊपर और इसको डेवलप किया, तो ये उसके नाम के साथ एसोसिएट हो गया। स्टार्ट में इस पे जो काम हुआ था 1970s में हुआ था और वो एक जर्मन रिसर्चर था, उसने इस पे काम किया। बाद में फिर 1980s में ये फुली डेवलप हो गया और इस वजह से जो कॉनन लास्ट नेम था वो यूज़ होने लगा इस अनसुपरवाइज लर्निंग अप्रोच के साथ। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में अब देखेंगे। द सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर कॉनन। द SOM हैज़ बीन प्रूवन यूजफुल इन मैनी एप्लीकेशन। बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमारे पास SOM काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूरल नेटवर्क मॉडल, इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कम्पिटिटिव लर्निंग नेटवर्क। ये जो है न्यूरल नेटवर्क से बिलोंग करता है क्योंकि इसमें भी हमारे पास नोड होते हैं और वो नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं और डेटा उसी तरह ट्रांसफ़र हो रहा होता है और उसमें भी वेट्स होते हैं और वो वेट डिपेंडेंट होते हैं और उसकी लर्निंग के ऊपर। अगर लर्निंग हो रही है तो वो वेट्स चेंज होते जाएंगे और वो आपको डिज़ायर रिजल्ट्स देते जाएंगे। तो इसको कम्पिटिटिव लर्निंग नेटवर्क भी कहते हैं और इसका मतलब ये है कि इसमें जो नोड के वैल्यू बेहतर होते हैं वो विन करता है, वो टेक ओवर कर लेता है। कंपटीशन इसके अंदर हो रहा होता है। हम आगे डिटेल में देखेंगे, इस वजह से इसको कम्पिटिटिव लर्निंग नेटवर्क भी कहते हैं। बेस्ड ऑन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग विच मीन्स दैट नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज नीडेड ड्यूरिंग द लर्निंग एंड दैट लिटिल नीड्स टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनपुट डेटा। हम इसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होती, कोई वो इनपुट अपनी नहीं दे रहा होता। जब ये प्रोसेस हम स्टार्ट करवा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज चेंज करता है, वेट्स चेंज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से वो लर्निंग का प्रोसेस चल रहा होता है और जब वेट स्टेबल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये अब लर्निंग कंप्लीट हो गई है। इस वजह से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई हम ये नहीं बताते कि डिज़ायर्ड आउटपुट क्या किस तरह होनी चाहिए और इनपुट क्या होनी चाहिए। इनपुट के केस में हम बताते हैं थोड़ा बहुत, कुछ फीचर्स हम बता देते हैं कि इनपुट किस तरह होगी, उसको किस टाइप के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत रिलेटेड है ह्यूमंस के साथ। यूज द SOM फॉर क्लस्टरिंग डेटा विदाउट नोइंग द क्लास membership of the input data. The SOM can be used to detect feature inherent to the problem and thus has also been called SOFM, the self-organizing feature map. यहाँ पर ये बात हो रही है कि नॉर्मली जो डेटा के अंदर जो फीचर्स होते हैं उसकी बेस पे जो अननोन डेटा है उनकी क्लासेस बनाई जाती हैं, वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड होते हैं। इस वजह से इसको हम SOFM भी कहते हैं और वो वजह क्या है कि इसमें हमने फीचर का वो भी साथ डाल दिया है कि ये इसके फीचर्स, क्योंकि डेटा के फीचर्स काउंट हो रहे होते हैं जिसकी बेस पे डिसीजन होता है, तो हम इसको ये नाम भी देते हैं। बाज़ औक़ात आप इसको देखेंगे के साथ के SOM होगा या बाज़ औक़ात आप देखेंगे इसको SOFM के साथ। तो ये एग्जैक्टली है तो एक ही चीज़, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप ही है लेकिन इसके दो डिफरेंट नाम हैं। द जर्नल प्रॉब्लम, हाउ कैन एन एल्गोरिथम लर्न विदाउट सुपरविजन। अब हम देखते हैं कि अगर ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक एल्गोरिथम सेल्फ लर्निंग कर ले, वो बग़ैर टीचर के कुछ चीज़ें सीख ले। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसके एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। पहली तो ये है कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स हैं, हम देखते हैं कि इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स है। हम एक नज़र में नहीं देख सकते कि इसके अंदर क्या है और वो किस तरह है। हम इसको अगर ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो क्योंकि वजह यह है कि डेटा, जो भी हमारे पास डेटा हो ऑर्गेनाइज ना हो तो वो मीनिंगलेस है। तो यहाँ पर हम उसको अगर ऑर्गेनाइज करना चाहें, हम इस सिचुएशन में ये डेटा, ये जो आइटम्स हैं इनको हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। समटाइम यू नीड टू
नीड अ वे टू ग्रुप स्टफ। हम चाहते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज कर लें और हम कोई इसमें सुपरविजन नहीं करना चाहते, हम ये नहीं बताना चाहते कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है कि हम कुछ जो है वेजिटेबल्स हैं उनको अलग कर दें किसी एक बेसिस के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर हमारे पास सी फूड है, उनको हम अलग कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ जो रेड मीट है उनको हम अलग कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट क्लासेस हम बना सकते हैं डिफरेंट स्टफ़ की। तो अब ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, हम इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम इसकी कोई मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हमें चाहिए होती है बाज़ औक़ात डेटा में, और हम चाहते हैं कि उसकी क्लासेस बन जाए। अगर हम उसको समझ नहीं सकते, हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो अगर हम वो दे दें ऐसे नेटवर्क को जो सेल्फ ऑर्गेनाइज कर ले, जो ख़ुद से उनको ऑर्गेनाइज कर दे, तो वो हमें बहुत सारे मुश्किलात से आसानी मिल जाएगी। अब हम क्वेश्चन ये आता है कि बाज़ जगहों पर हम अनसुपरवाइजन यूज़ कर रहे होते हैं, और उसकी वजह ये है कि ह्यूमन के नेचर में ये है कि वो बाज़ जगहों पर अंडरस्टैंडिंग कर रहा होता है, वो बग़ैर टीचर के लर्निंग कर रहा होता है। जिस तरह यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जो छोटे किड्स होते हैं वो लर्निंग कर रहे होते हैं, उनको कोई नहीं बताता, और वो फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हेड एंड ट्रायल के बेस पे लर्न कर लेते हैं। सेम इस तरह एनिमल्स हैं जो जिनके स्किल्स हैं जो विदाउट एनी ह्यूमन सुपरविजन वो लर्निंग कर रहे होते हैं। तो जब ये कर सकते हैं जो नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्यों ना हम इस फीचर को जो विदाउट टीचर सुपरविजन है लर्निंग है उसको अडॉप्ट करें, और वो मशीन में इस तरह के कोई एल्गोरिथम बनाए जो सेल्फ लर्निंग कर सके। और अगर ये ना हो तो हमारे लिए कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं व्हेन वी यूज़ unsupervised learning? The basic question is that we are using unsupervised learning in different situations, and one of it is the dead languages that are in ancient languages. So how we learn it, we have no teacher of it, what it means, what the symbols are, what it represents. But after a lot of thoroughly discussions and understanding of it, the language can be learned, and we can understand what this language is and what it wants to say. So this is without any supervision. हम मुख्तलिफ ज़बानों को जो जिनके टीचर्स अभी नहीं हैं, जिनकी बुक्स अभी नहीं हैं, हम अगर देखते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर, तो वहाँ पर हमारे पास लैंग्वेजेस आ रहे होते हैं और हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, और कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो उनको काफ़ी स्टडी करने के बाद वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं अनसुपरविजन। और सेम इसी तरह हम मॉडर्न दौर में हैं, तो मॉडर्न दौर के अंदर हमें अनसुपरवाइज लर्निंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और वो है स्पेसिफिकली रोबोट्स के अंदर और मशीन्स के अंदर, एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर हमें अनसुपरवाइज लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सोम की बायोलॉजिकल जस्टिफिकेशन की तरफ। बायोलॉजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ द सोम फ्रॉम द ब्रेन, हाउ द ह्यूमन ब्रेन इज़ वर्किंग। The SOM model are based on studies of learning in the V1, V2, V4. V1, V2, V4 are actually the areas which are in the back of the mind and empty area of the brain. These are also called Brodmann areas. Especially areas 17 through 19. जो हमारे पास ये areas हैं 17 through 19 जो बैक ऑफ द माइंड है, इनको हम सोम जो है वो मॉडल करता है, और एक्चुअली ये जिस तरह काम कर रहा होता है सेम उसी तरह की जो फंक्शनलिटी है वो सोम में लाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली किस तरह काम हो रहा होता है जो ब्रेन के अंदर है वो हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। मोस्टली जो बैक ऑफ द माइंड है वो विजुअल परसेप्शन के लिए यूज़ हो रहा होता है, और हम देखते हैं कि विजुअल परसेप्शन किस तरह काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक कोई भी स्टिमुलस है जो एज इनपुट आता है आइज़ के थ्रू, वो कन्वर्ट हो जाता है, वो आ जाता है जो सेल्स हैं
वो उनके अंदर आ जाता है आइज़ के जो सेल्स हैं, और वो वहाँ से उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी सिग्नल्स के थ्रू। यहाँ पर कन्वर्जन हो जाती है, सिंपली यहाँ पर कोई फ़िल्टर लगा हुआ है जो इनको कन्वर्ट कर देता है एक ख़ास सिग्नल्स में। अब ये सिग्नल्स जाकर आगे फॉरवर्ड होते हैं और ब्रेन में ये इस पे प्रोसेस हो रहा होता है। अब ये किस तरह हो रहे होते हैं, हमें ये पता है कि ब्रेन के अंदर हमारे पास न्यूरॉन्स हैं। हमने कोई इनपुट ली है एज अ इमेज आइज़ के थ्रू, और उनको फिर हमने कन्वर्ट किया है सिग्नल्स में। अब ये अगर हम इज्यूम करते हैं कि हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स हैं, वहाँ पर आ रहे हैं वो सिग्नल, और इसमें कोई भी डाटा पहले से नहीं था, तो जब पहले डाटा आ जाता है तो वो करता क्या है कि कोई एक सेल जो है वो इनिशियलाइज करता है, वो उसको टेक ओवर कर लेता है, वो ले लेता है, और जैसे ही वो लेता है उसको वो वैल्यू, वो यहाँ पर उसका रिस्पांस दिखाया गया है कि एक जो न्यूरॉन है वो रिस्पांस करता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके करीबी जितने भी होते हैं वो उनको भी साथ में अटैच कर लेता है, ताकि उनके वैल्यूज़ भी साथ अटैच हो जाते हैं। तो जब भी कोई भी इनपुट इसको इस किस्म की आएगी, इस इमेज के साथ रिलेटेड होगी, तो वो एक ख़ास एरिया में जाकर उस ख़ास एरिया को स्टिमुलेट करेगा ब्रेन के अंदर। तो जो भी हमारे पास एक स्पेसिफिक इमेज या एक स्पेसिफिक सिचुएशन होगी, तो उससे रिलेटेड एक ब्रेन के अंदर एक ख़ास एरिया है जो स्टिमुलेट होता है, और वो उसके नाइबर्स को भी साथ में कन्वर्ट कर देता है। सेम अब हमारे पास कोई दूसरा इमेज आता है, तो दूसरे इमेज के सिचुएशन में कोई और एरिया जो है वो स्टिमुलेट होगा, और वो साथ में अपने नाइबर्स को भी कन्वर्ट कर देगा, उसकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर देता है, उस न्यूरॉन्स को भी मतलब एक्टिवेट करके उनके जो सिग्नल्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन कर देता है। अब हमारे पास सेम इस तरह के डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं, और डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, डिफरेंट इमेजेस के लिए डिफरेंट एरियाज होते हैं जो स्टिमुलेट होते हैं, resulting in a map in which cluster of neurons which respond to the respective stimuli। हम देखते हैं कि हर एक स्टिमुलस जो आएगा, जो स्टिमुलेट करेगा न्यूरॉन्स को, वो एक ख़ास एरिया के साथ बिलोंग करता है, और वो इस एरिया के नाइबर्स को भी, न्यूरॉन के जितने भी नाइबर्स होंगे उनको भी साथ में एलाय कर लेता है, उसकी वैल्यूज़ को भी साथ में चेंज कर लेता है, ताकि वो सारे स्टिमुलेट हों, सारों पे कोई असर हो। तो हम जितने भी इमेजेस हम आएंगे हमारे पास, वो एक ख़ास एरिया को स्टिमुलेट करते हैं। इसी अप्रोच को लिया गया है कि अगर इस तरह हो रहा है माइंड के अंदर कि एक न्यूरॉन है वो इफ़ेक्ट होता है, तो उसके नाइबर के न्यूरॉन भी साथ में इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो क्यों ना हम कोई इस तरह का एल्गोरिथम बनाएं कि जिसमें अगर एक नोड पे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो उसके साथ के जो नाइबर नोड हैं उनके ऊपर भी अपना इफ़ेक्ट डाले। अब हमारे पास क्या है, सिंपल एल्गोरिथम के अंदर कुछ ट्रेनिंग डेटा है। हम सिंपल देखते हैं कि ट्रेनिंग डेटा x है, और उसको हम डिवाइड करते हैं वेक्टर ऑफ लेंथ n, जिसकी लेंथ जो है वो n तक है, क्योंकि x वेक्टर है। वेक्टर के अंदर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, और वो x1 से लेकर x1 से लेकर x1n तक है, और फिर x21 x22 और इस तरह 2n तक है, और इस तरह चलते जाते हैं। तो हमारे पास ये सारे जो हैं p डिफरेंट वेक्टर्स हैं, जो डिस्टेंस ट्रेनिंग वेक्टर हैं। तो हम बहुत सारे वेक्टर्स एज्यूम करते हैं कि ये एज अ इनपुट हैं। वेक्टर कंपोनेंट्स आर रियल नंबर्स, और ये एक्चुअली रियल नंबर्स हैं, इनको हम नंबर की फॉर्म में ले रहे हैं। आउटपुट्स a vector y of length m, y1, y2, yi and ym. Sometimes m is less than n, sometimes m is less than n, sometimes m is equal to n. y हमारे पास क्या है, वो आउटपुट है, और आउटपुट हमारे पास y1 से लेकर ym तक हो सकता है, और ये
डिपेंड करता है हम उसके अंदर कितने आउटपुट रखना चाहते हैं, कितने वैल्यूज़ हम एज आउटपुट देखना चाह रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। वो n के इक्वल भी हो सकता है, जो लेंथ है एक्चुअली वेक्टर की, उससे ग्रेटर भी हो सकता है, उसके लेस भी हो सकता है। ईच ऑफ अ p वेक्टर इन द ट्रेनिंग डेटा इज क्लासिफाइड एज अ फॉलिंग इन वन ऑफ m क्लस्टर और कैटेगरीज। यहाँ से हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हैं, हर एक वेक्टर जो है वो किसी एक क्लास के अंदर लाई करेगा, और वो क्लासेस क्या हैं, वो m तक हैं। जितनी m क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल m हमारे पास 3 है, तो 3 क्लासेस में से इनमें से कोई एक जो है वो इन 3 क्लासेस में से किसी एक में लाई करेगा। दैट इज विच कैटेगरी डज द ट्रेनिंग वेक्टर फॉल इनटू। और ट्रेनिंग के दौरान हम उसको देखते हैं कि ये जो एक वेक्टर है वो किस क्लास के साथ बिलोंग करता है। जनरलाइजिंग फॉर अ न्यू वेक्टर xj1 xj2 until xjn which of the m category cluster does it fall into। हम जनरलाइजिंग के लिए फिर क्या करते हैं, हम कोई नया वेक्टर लेते हैं और फिर उसको देखते हैं कि क्या वो किस क्लास के साथ बिलोंग करता है, उसको चेक करते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर 2 लेयर्स ऑफ यूनिट्स। हमारे पास नॉर्मली 2 यूनिट्स होते हैं। इनपुट n यूनिट लेंथ ऑफ अ ट्रेनिंग वेक्टर, n इनपुट्स होते हैं, उसके अंदर उसकी लेंथ जो है वो डिपेंड करती है आपके वेक्टर के ऊपर। अगर वेक्टर हमारे पास 3 है तो हमारे पास नोड 3 होंगे, अगर वेक्टर 4 है तो नोड 4 होंगे, डिपेंड करता है कितने इनपुट्स हैं। आउटपुट m यूनिट नंबर ऑफ कैटेगरीज, हम कितने कैटेगरीज बनाना चाहते हैं। जिस तरह हमने एग्जांपल देखी थी डिफरेंट वेजिटेबल फ्रूट्स आइटम्स की, तो हम उसमें कितनी कैटेगरीज बनाना चाहते हैं वो डिपेंडेंट है आउटपुट पे। उस लिहाज से फिर उतने ही कैटेगरीज हम बनाएंगे और वही हमारे पास आउटपुट होगी। इनपुट यूनिट्स फुली कनेक्टेड विद वेट्स टू आउटपुट यूनिट। जो इनपुट है, इनपुट लेयर जो है वो कनेक्टेड है फुली का मतलब ये कि हर एक नोड जो है हर आउटपुट नोड के साथ कनेक्टेड है। इंट्रा लेयर कनेक्शंस, जो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं, वो आउटपुट लेयर जो है हम उसको एज अ इंट्रा लेयर लेते हैं। विद इन आउटपुट लेयर डिफाइन अकॉर्डिंग टू सम टोपोलॉजी, नो वेट्स बिटवीन दीज कनेक्शन बट यूज इन एल्गोरिथम फॉर अपडेटिंग वेट्स। हम कोई टिपोलॉजी बताते हैं किस तरह ये नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हैं, किस तरह ये नोड आपस में कनेक्टेड हैं, वो हम बताते हैं। और वो हमारा जो आउटर लेयर है वो होता है एक्चुअली कि वो आउटर लेयर आपस में किस तरह कनेक्टेड है। नेटवर्क का आर्किटेक्चर अगर हम देखें विजुअली तो क्या है, हमारे पास इनपुट्स हैं n तक और हमारे पास आउटपुट हैं m तक, और ये फुली कनेक्टेड हैं। हर एक इनपुट जो है वो हर एक आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, और फिर इनके आपस में भी कनेक्शन है। और ये कनेक्शन किस तरह है ये हम डिफाइन करते हैं। डिफरेंट अप्रोचेस हैं हमारे पास, हम डिफरेंट कनेक्शंस बना सकते हैं, तो वो सारे डिपेंडेंट हैं हमारे टोपोलॉजी के ऊपर, हम कौन से टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ओवरऑल सोम एल्गोरिथम किस तरह काम कर रहा है। ओवरऑल ट्रेनिंग के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट आउटपुट लेयर टोपोलॉजी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम देखते हैं कि ये जो आउटर लेयर्स हैं ये आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल ये y1 जो है ये yi के साथ कनेक्टेड है, या ये y1 जो है ये ym के साथ कनेक्टेड है, दरमियान में ये कनेक्टेड नहीं है। अगर ये कनेक्ट है तो ये किसके साथ किस तरह कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं और हेक्सागोनल कनेक्शंस हो सकते हैं इनके आपस में, स्टार कनेक्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के टोपोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं कि ये आपस में ये नोड किस तरह कनेक्टेड हैं, क्योंकि इनकी कनेक्शन के ऊपर ही उनके नाइबरहुड इफ़ेक्ट्स हो रहा होगा। अगर तो ये कनेक्टेड है इन दोनों के साथ तो ये दोनों इस yi के नाइबर्स हैं, तो अगर ये विन करता है तो इनके नाइबर्स भी चेंज होंगे साथ में। जिस तरह हमने देखा इमेजेस के केस में कि अगर हम इमेजेस को लेते हैं इनपुट आइज के थ्रू, तो देखा हमने कि
कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो एक तो इंडिविजुअल होता है जो स्टिमुलेट हो जाता है, लेकिन उसके जो साथ वाले हैं वो भी साथ में स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। अब अगर उसके साथ कनेक्टेड जितने भी होंगे तो वो चेंज हो रहे होंगे, तो वो किस टोपोलॉजी के साथ, किस तरीके के साथ आपस में कनेक्टेड हैं, सिर्फ वही वाले नाइबर चेंज हो रहे होंगे। ट्रेन वेट्स कनेक्टिंग इनपुट टू आउटपुट। हम अब ट्रेन करते हैं वेट्स को जो कनेक्ट होते हैं इनपुट से आउटपुट की तरफ। टोपोलॉजी इज यूज इन कंजंक्शन विद करंट मैपिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट टू डिफाइन विच वेट विल बी अपडेटेड। अब इसमें भी हम देखते हैं कि कौन से वेट्स जो हैं वो चेंज होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर हैं तो इस केस में कौन से वेट चेंज होंगे, अगर हम यहाँ पर हैं तो कौन से वेट चेंज होंगे, तो ये भी डिपेंड करता है कौन सी टोपोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। डिस्टेंस मेजर यूजिंग द टोपोलॉजी इज रिड्यूस ओवर टाइम, रिड्यूस द नंबर ऑफ वेट दैट गेट अपडेटेड पर आइटरेशन। हम इसमें मेजर करते हैं डिस्टेंसेस को और डिस्टेंस की बेस पे हम वेट को चेंज करते हैं। अब मैंने आपको बताया पिछले पॉइंट में कि हम वेट्स चेंज करते हैं टोपोलॉजी की बेस पे। अब अगर तो ये वेन करता है, फॉर एग्जांपल ये जो नोड है ये स्टिमुलेट हुआ, ये इसने चेंज होना है, तो इसके साथ जितने भी कनेक्टेड होंगे उनके वेट चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये है तो इसके जितने भी वेट्स होंगे हम उसको चेंज कर देंगे। तो ये टोपोलॉजी पे डिपेंडेंट है। और सेम वेट किस तरह चेंज हो रहे होंगे, वो डिस्टेंस की बेस पे हो रहे होंगे। जिसका डिस्टेंस कम होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे और जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। लर्निंग रेट इज़ रिड्यूस ओवर टाइम। अब हम क्योंकि हम वेट चेंज करते हैं और ये वेट चेंज ही एक्चुअली लर्निंग हो रही होती है, तो लर्निंग हम चेंज करते जाते हैं और जब वो ख़ास लेवल पे पहुंच जाता है, जब लर्निंग ना हो रहे हो, जब लर्निंग में कोई असर ना पड़ रहा हो, तो हम लूप से बाहर निकल आते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है हम लूप को किस तरह टर्मिनेट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग है, यूज़ वेट फॉर ट्रेनिंग। हम सिंपली जो वेट्स हैं हम उसको चेक करते हैं। हमने जो नेटवर्क जनरेट हुआ उसको हम उसकी टेस्टिंग करते हैं न्यू डेटा के ऊपर। अब हम डिटेल में देखते हैं इस एल्गोरिथम को। सेलेक्ट आउटपुट लेयर नेटवर्क टोपोलॉजी, इनिशियलाइज करंट नेबरहुड डिस्टेंस D0 टू अ पॉजिटिव वैल्यू। हम सबसे पहले टोपोलॉजी सेलेक्ट करते हैं। आपको मैंने बताया टोपोलॉजी का मतलब ये है कि हम किस तरह नोड्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम कोई एक नोड सेलेक्ट करेंगे तो उसके नाइबर्स भी साथ में चेंज हो रहे होंगे। तो अगर कोई टोपोलॉजी ऐसी है कि उसमें सारे कनेक्टेड हैं तो सबके वेट्स चेंज हो जाएंगे। इस वजह से हमें ये ख्याल रखना होगा कि हम कौन सी टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने बताया कि हम इनिशियलाइज करते हैं नाइबरहुड डिस्टेंस। हम कोई बताते हैं कि इसके नाइबरहुड कौन कौन से नाइबर्स चेंज होने चाहिए, कौन कौन से नाइबर्स में कितने चेंजेस होने चाहिए, वो हम बताते हैं और वो एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। इनिशियलाइज वेट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट टू स्मॉल रैंडम वैल्यूज़। अब हम वेट्स को इनिशियलाइज करते हैं। स्टार्ट में हम कोई वैल्यूज़ देते हैं इनिशियल, और वहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कम वैल्यूज़ के साथ हम उसकी चेंजेस करते जाते हैं। लेट t इज इक्वल टू 1। अब t हमने वो वैल्यू ली जो कि रैंडम वैल्यू है वेट के लिए। वाइल कंप्यूटेशनल बाउंड आर नॉट एक्सीडेड डू। अब यहाँ पर हमने वाइल लूप लगा दी। अब इस लूप के अंदर हमने कोई बाउंड लगा दिया कि कब तक ये लूप चलता रहेगा। ये लूप चलता रहेगा तब तक कि जब इसमें वेट के अंदर चेंजेस ना आ रही हों ज़्यादा। हम इस तरह कर सकते हैं, हम इसको फिक्स कर सकते हैं कि ये 10 बार चले, 20 बार चले, 100 बार चले, तो हम इसको भी इस पे भी हम लगा सकते हैं। डिपेंडेंट है हमारे सिचुएशन के ऊपर हम किस तरह इसको रखना चाहते हैं। सेलेक्ट एन इनपुट सैंपल IL। हम कोई एक इनपुट सेलेक्ट करते हैं, कौन सा इनपुट हमें चाहिए होगा। कोई भी हम वेक्टर सेलेक्ट करते हैं एज अ इनपुट। कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ IL। हम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं। आपको मैंने बताया कि डिस्टेंस की बेस पे हो रहा होगा, तो इस वजह से हम करते क्या हैं, उसका स्क्वायर ले लेते हैं
फ्रॉम वेट वेक्टर Wj, उसका वेट वेक्टर के साथ हम उससे जो वेक्टर हमने लिया उसका यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं वेट वेक्टर के साथ एसोसिएटेड विद ईच आउटपुट नोड, जो कि आउटपुट नोड के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पर हम ये इनपुट लेते हैं और इसके साथ जो वेट है उसका डिस्टेंस उससे निकालते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं जो इसके आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। अब उसको अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में देखें तो वो क्या है, n k इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जाता है और इनकी समेशन कर रहा होता है जो भी इस की वैल्यू आ रही होगी। तो i जो है हमारे पास इनपुट है और w उसका वेट है और t जो है वो एक्चुअली हमने इनिशियलाइज किया था 1 से, वो क्या था, वो रैंडम वैल्यू थी वेट्स के लिए। Select output node j that has weight vector with minimum value from step 2। अब हम कोई आउटपुट सेलेक्ट करते हैं, आउटपुट नोड सेलेक्ट करते हैं, इधर से जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा होगा जो सबसे लोएस्ट होगा, कोई भी j हम सेलेक्ट करेंगे, j क्या होगा, वो वाले वेट जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी। अब वो वाले वेट्स हम सेलेक्ट करेंगे और दोबारा हम 2 पे जाएंगे, स्टेप नंबर 2 पे, और इसको दोबारा रिपीट करेंगे। अब इसके बाद जब हमारे पास लोएस्ट आ जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा, अपडेट वेट टू ऑल नोड विद इन अ टोपोलॉजी डिस्टेंस गिवन बाय dt। अब हम ये बताते हैं कि अपडेट कर दें वो वाले वेट्स जो टोपोलॉजी हमने सेलेक्ट की है उसकी बेस पे जो नोड उसके साथ कनेक्टेड हैं स्पेसिफिक नोड के साथ, तो उसकी बेस पे वो सारे वेट्स चेंज हो जाएं। dt और dt हमने बताया कि स्टार्ट में हमने 0 लिया हुआ था, फिर हमने इसको 1 कर दिया, तो उसके साथ जो भी नाइबर्स कनेक्टेड होंगे 1 नाइबर जो भी कनेक्ट होगा उसको हम चेंज कर देंगे, उसके वेट को हम चेंज कर देंगे। तो वेट को हम कैसे चेंज करेंगे, हम लेंगे वेट j और t + 1 कर देंगे हम, क्योंकि t में अब हम चेंजेस कर रहे होंगे, तो जो पिछला वेट था वो ले लेंगे हम, और फिर जो नया फैक्टर है जिस फैक्टर के साथ हम चेंज करना चाह रहे हैं कितनी वैल्यू होनी चाहिए उसकी, वो हम बताएंगे। और हम करेंगे क्या कि हम ये जो डिस्टेंस था जो हमने जनरेट किया था हमारे पास, उसको ले लेंगे, उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, ये पूरे स्टेप्स को रिपीट करेंगे, लेकिन हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे t के साथ, क्योंकि हम बार इसको चेंज करेंगे और हम आगे चलते जाएंगे, वेट्स को हम चेंज करते जाएंगे डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, और वो होगा जो हम यहाँ पर t सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको डिटेल से समझ आ जाए। एग्जांपल एक रिसर्च पेपर से लिया गया है। इसमें क्या है, n = 4 हमारे पास इनपुट नोड 4 हैं और हमारे पास आउटपुट नोड 2 हैं, m = 2। यहाँ पर हम देखते हैं इनपुट हमारे पास 4 है और आउटपुट हमारे पास 2 है और ये फुली कनेक्टेड है। ट्रेनिंग सैंपल्स हमारे पास क्या है, i1, i2, i3 और i4, और इसके डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे, डेटा का आपस में यूक्लिडियन डिस्टेंस हम निकालेंगे। और हम अगर इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं तो हम देखते हैं कि 1 जो है, i1 जो है i2 से कितना डिफरेंट है, उसकी बेस पे हम उसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर हम ये देखें, यहाँ पर हमारे पास 0 है, यहाँ पर 1 है। 1 का 1 के साथ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन 1 का 2 के साथ हम अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर होगा, उसके रिजल्ट क्या आ रहे होंगे, उसकी वैल्यू 3 है डिस्टेंस। क्यों 3 है, क्योंकि 3 ऐसी लोकेशंस हैं 1 की जो कि डिफरेंट है 2 से, तो इस वजह से वो 3 यहाँ पर आ जाएगा। सेम इस तरह अगर हम 3 लेते हैं ये वाली, तो 3
और 1 के दरमियान कितने डिफरेंसेस हैं, तो वो हम देखते हैं। वो क्या है, 1 लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर 1 है हमारे पास और यहाँ पर 0 है। इस वजह से ये एक ऐसी वैल्यू है जो डिफरेंट है I3 और I4 के दरमियान। इस वजह से इसका डिस्टेंस क्या हुआ, 1। और फिर अगर हम 3 का 2 के साथ डिस्टेंस देखें तो 2 ऐसी लोकेशंस हैं जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ डिफरेंट है। एक 0 और जो पहला है और फिर दूसरा। इस तरह हम करते जाएं तो हम सारे डिस्टेंसेस निकाल लेंगे। और ये डायगोनल इस वजह से बन रहा है कि अगर हम यहाँ से दोबारा करना जाएं तो एग्जैक्टली सेम चीज़ होगी डायगोनली। तो हम पहले क्या करते हैं, हम उसका यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ करेंगे एज ए इनपुट। हम इसको चेक करेंगे कि अब इस एग्जांपल की हम और डिटेल देखते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास सैंपल है इनपुट के लिए। अब इसमें हमने बताया था कि हमारे पास नेबरहुड चेंज होते हैं, नेबरहुड टोपोलॉजी की बेस पे चेंज होते हैं। यहाँ पर हम नेबरहुड को चेंज नहीं करते और उसको हम 0 रखते हैं। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, ओनली अपडेट वेट एसोसिएटेड विद विनिंग आउटपुट यूनिट क्लस्टर एट ईच आइटरेशन। हम सिर्फ उसके जो विन करता है उनके वेट्स को चेंज करते हैं, ना कि उनके साथ जो नाइबर्स हैं उनको भी चेंज करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो है ही 2 की, तो अगर इनकी वेट्स हम चेंज करें, कोई एक विन करता है तो दूसरे की वेट्स भी चेंज हो जाएं, तो वो कोई रिजल्ट्स हमारे पास कोई अच्छे नहीं आ रहे होंगे। हम अगर ज़्यादा हों हमारे पास तो उस वक्त वो बेहतर हो जाएगा। यहाँ हम सिंपल इसको 0 रखते हैं, नेबरहुड को हम नहीं छेड़ेंगे। फिर लर्निंग रेट क्या है, लर्निंग रेट का मतलब ये कि जब हम चेंज करेंगे हर आइटरेशन के अंदर तो वो चेंज वेट की चेंज किस फैक्टर के साथ होना चाहिए, तो वो हम डिफरेंट रख सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। हम जो सेलेक्ट करेंगे नॉर्मली हम इस सिचुएशन में 0.6 ले लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्योंकि 2 आउटपुट हैं तो हम 2 यूनिट्स रखते हैं वेट्स के लिए। इनिशियल वेट मैट्रिक्स क्या होगा, क्योंकि हर एक नोड के साथ 4 कनेक्शंस हैं तो हमारे पास 4 उसके रैंडम वैल्यूज़ हमने रख लिए। रैंडम वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 हमने रैंडम वैल्यूज़ रख लिए यूनिट 1 के लिए और यूनिट 2 के लिए, और हर एक लाइन के लिए एक एक वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। उसके बाद हम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं। डी स्क्वायर क्या है, वो एक्चुअली ये जो फार्मूला हमने पिछले स्लाइड में देखा था एग्जैक्टली वही यूज़ हो रहा है। और जब हम वेट को अपडेट करेंगे उसके लिए हम सेम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो पिछली स्लाइड में हमारे पास था। अब हम इसको आगे देखते हैं कि हम कैसे इसमें आइटरेशन करते हैं। हम पहली इनपुट यूज़ करते हैं I1 के लिए। I1 के लिए जब हम इनपुट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें 0.2 वेट जो है और फिर 1 जो है यहाँ पर वेट और जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको हम स्क्वायर लेते हैं और फिर हम सबको ऐड करते हैं। तो माइनस करते हैं हम और फिर उसका स्क्वायर लेते हैं और फिर हम इनको आपस में ऐड करते हैं। तो हम जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला तो हमारे पास क्या आएगा 1.86 इन टोटल आ जाएगा I1 के लिए। I1 क्या था हमारे पास 1 1 0 0, तो यहाँ पर है 1 1 0 0 और ये जो है 0.2 ये हमारे पास क्या है वेट्स हैं 0.2 0.6 0.5 0.9, तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ आ गई और फिर हमने उसका स्क्वायर लिया, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो 1.86 आ गया। अब सेकंड के लिए क्योंकि हमारे पास 2 आउटपुट हैं तो दूसरे के लिए क्या है वो उसके वेट यूज़ कर दिए 0.8 0.4 0.7 0.3 वो यहाँ पर आ गए और जो इनपुट था वो एग्जैक्टली वही है I1 ही है, तो 1 1 0 0, तो हमारे पास 0.98 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वो वाला लेंगे जिसका डिस्टेंस आपस में कम हो, तो 0.98 क्योंकि कम है 1.86 से, तो इस सिचुएशन में यूनिट 2 विन करता है। यूनिट 2 विन करता है
तो हम क्या करेंगे, अपडेट द वेट्स। हमने यहाँ पर देखा था कि जो कम होगा उसके बाद हम वेट्स को चेंज करेंगे, और क्योंकि नाइबरहुड इन्फॉर्मेशन इसमें है ही नहीं, हम नाइबरहुड को नहीं चढ़ेंगे, तो इस सिचुएशन में हम सिंपल उसके वेट्स को चेंज कर देंगे। अब वेट के लिए भी हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है, और वो ये है, हम वेट टी लेते हैं प्लस जो फैक्टर है जिससे हम चेंज कर रहे होंगे वो 0.6 है, और फिर हम वो डिस्टेंस जो हम यूज़ कर रहे थे एग्जैक्टली वही ले लेते हैं। तो वो हमारे पास जो वेट एग्जैक्टली था वो लिया, प्लस फिर हमने जो फैक्टर था उसको लिया और आपस में इस इक्वेशन को सॉल्व किया। तो जैसे ही हमने सॉल्व किया तो 0.92 आ गया, 0.76 आ गया, 0.28, 0.12 आ गया। अब ये जो है ये नए वेट हो गए यूनिट 2 के, और यूनिट 1 के एग्जैक्टली वही पुराने रहे। अब हम आगे जाते हैं सेकंड I2 के लिए। जब हम I2 यूज़ करते हैं तो हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 0.66 आ जाएगा, और जब हम यूनिट 2 के लिए देखते हैं दूसरे नोट के लिए तो वहाँ पर हमारे पास 2.28 आ जाएगा। इस सिचुएशन में विन करता है यूनिट 1, तो यूनिट 1 विन करेगा, तो हम अपडेट करेंगे यूनिट 1 के वेट को। उसका फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, हम उसको यूज़ करेंगे, फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वेट ऑलरेडी थे पुराने उसको यूज़ करेंगे, और अब हमने वेट अपडेट कर दिए। तो अब अगर आप देखें यूनिट 1 के वेट हो गए 0.08, 0.24, 0.20, 0.96, और इस तरह जो पिछला था उसके वही रहेंगे। अब हम आगे जाते हैं तीसरे इनपुट के लिए। तीसरे में भी हम इसी तरह जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 1.87, और यूनिट 2 के लिए 0.68। इस सिचुएशन में यूनिट 2 विन करेगा, और इनके वैल्यूज के वेट को हम चेंज करेंगे। तो पहले 92 था, अब हमारे पास 97 आ गया, पहले 76 था, 0.76 था, अब 0.30 हो गया, और इस तरह ये सारे वेट्स चेंज हो जाएंगे। वजह क्या थी कि यूनिट 2 ने विन किया था, उसके डिस्टेंस जो था वो कम था। अब हम जाते हैं फोर्थ आइट्रेशन के लिए। फोर्थ आइट्रेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो यूनिट 1 है वो विन करता है 0.71 के साथ, और जो यूनिट 2 था उसके वैल्यूज थे 2.74। तो हम यूनिट 1 के वेट्स को चेंज कर लेते हैं, और वो अब बन जाएंगे 0.03, 0.10, 0.68, 0.98। इस तरह हम आगे चलते जाएंगे, और हम देखते हैं कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो चेंज होता जा रहा है। पहले हमारे पास यूनिट 2 विन करता है, फिर दूसरे आइट्रेशन में यूनिट 1 विन करता है, फिर तीसरे आइट्रेशन में यूनिट 2 विन करता है, फिर फोर्थ आइट्रेशन में यूनिट 1 विन करता है। और जो फैक्टर था हमारे पास वो 0.6 के साथ था, और डिस्टेंस इसमें कोई भी नहीं था, सॉरी जो नाइबरहुड था वो कोई भी नहीं था। आफ्टर मैनी आइट्रेशन थ्रू द डेटा सेट हमारे पास क्या आया फाइनली, हम काफ़ी मरतबा आइट्रेट करने के बाद हम देखते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं आ रही, तो फिर हम वही वेट ले लेते हैं जो उस टाइम में होंगी, जो काफ़ी बाद आइट्रेशन के बाद भी चेंज ना हो रहा हो, तो हम वही वाले वेट ले लेंगे। और वो वेट क्या आते हैं 0, 0, 0.5, 1.0, 1.0, 0.5 और 0, 0, ये हमारे पास वेट्स आ गए। तो ये वेट जो है अब हम इसको यूज़ करेंगे। अब हम इसको यूज़ करेंगे और हम देखते हैं कि ये जो डेटा हमने लिया है ये कौन से क्लास में बिलोंग करता है, कौन से क्लस्टर में जाता है। ये एक क्लस्टर हो गया 1, ये हो गया दूसरा क्लस्टर। इससे हमने ट्रेनिंग भी की थी और अब इससे हम सिंपल उसकी टेस्टिंग भी कर रहे हैं। आगे हम जाएंगे तो हम उसको जर्नलाइज करने के लिए नया डेटा भी लेंगे। अब इस सिचुएशन में हमने क्या किया, हमने पहले I1 के लिए इनपुट की, तो इसमें हम सेम डिस्टेंस मेजर करके उसकी एडिशन करते हैं और देखते हैं कि 3.2 आ गया एक में, और जो सेकंड था यूनिट उसके 0.25 आ गया, तो ये विनर हो गया। इस सिचुएशन में ये विनर हो गया, मतलब ये कि ये I1 जो है ये बिलोंग करता है
क्लस्टर नंबर 2 के साथ। सैंपल I2, फिर अब हम अगर I2 लेते हैं तो इस सिचुएशन में ये हमारे पास फार्मूला है यूक्लिडियन डिस्टेंस का, तो इस सिचुएशन में हमारे पास आ जाएगा 0.25 और यहाँ पर आ जाएगा 2.25। तो I2 जो है वो बिलोंग करता है क्लास नंबर 1 के साथ। अब हम जाते हैं नेक्स्ट 2 आइट्रेशंस के लिए। अब हम यूज़ कर रहे हैं I3 के लिए। हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू आ जाती है 2.2 यूनिट 1 के लिए और यूनिट 2 के लिए 0.25। तो इस सिचुएशन में 0.25 विन करता है। इसका मतलब ये कि I3 बिलोंग करता है यूनिट 2 के साथ। सेम इस तरह I4, तो उसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 0.25 आ जाएगा और 3.25, तो वो बिलोंग करता है क्लस्टर नंबर 1 के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल हमने लिए हैं I1 और I3 वो क्लस्टर नंबर 2 के साथ बिलोंग करते हैं और I2 और I4 क्लस्टर नंबर 1 के साथ बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जर्नलाइज करेंगे। इसको जर्नलाइज करने के लिए हम कोई I5 लेते हैं और फिर उसको चेक करते हैं। ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं, आप इसको चेक करें और देखें कि ये किस क्लास के साथ बिलोंग करते हैं। एक चीज़ अगर आप नोट करें, पीछे हम जाते हैं, हम देखते हैं कि ये जो डेटा है इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, आपस में ये मिलते हैं। I1 और I3 जो हैं ये आपस में मिलते हैं। और यहाँ पर आप देखें यूनिट 1 जो है और यूनिट 2 जो है ये भी आपस में अपोजिट हैं एक दूसरे से। इनमें भी कोई ख़ास चीज़ है जो डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखें स्टार्ट हो रहा है 1.0 से और फिर 0.5 से और फिर 0.0 से। यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 0.0 से, फिर 0.5 और फिर 1.0 से। तो ये रिवर्स हैं एक दूसरे के। यहाँ पर अगर आप देखें 1 और 3 बिलोंग करते थे क्लास नंबर 1 के साथ। सॉरी, मैं ज़रा इसको कंफर्म कर दूं। 1 और 3 बिलोंग करते हैं 2 के साथ। तो ये क्यों 2 के साथ बिलोंग कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमारे पास इन दोनों के स्टार्ट में क्या है, 0.0 और यहाँ भी 0.0 है। और यूनिट 2 में हमारे पास स्टार्ट में क्या है, 0.0 है। तो इस वजह से ये जो क्लास है और ये जो इनपुट है और ये इनपुट है, ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। अब अगर हम देखते हैं I1 को, तो सॉरी I2 को, तो वो स्टार्ट होता है 1 से। और यहाँ पर देखते हैं I4 को, वो भी स्टार्ट होता है 1 से। तो इस वजह से ये जो दोनों इनपुट हैं ये बिलोंग करते हैं, इसके भी कोई रिलेशंस हैं यूनिट 1 के साथ, क्योंकि इनके भी स्टार्ट में वैल्यूज़ हैं जो कोई वैल्यूज़ हैं जो जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं, ना कि 0 हैं। तो ये बहुत अहम है। इसने ये लर्निंग की और ये लर्निंग के बाद ये वैल्यूज़ असाइन हुए वेट्स को, और वो वेट्स ही असरअंदाज होते हैं आउटपुट के ऊपर। अब हम थोड़ा सा देखते हैं नाइबर के लिए कि अगर हम नाइबर की इंफॉर्मेशन रखना चाहें तो हम सिंपली इस तरह करते हैं कि हम एक और छोटी सी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास एक नेटवर्क है जो आपस में कनेक्टेड है और हम उसको हमने नाम दिया हुआ है B और A और C के नाम से, और वो आपस में एक लाइन के साथ कनेक्टेड हैं। अब हम इज्यूम करते हैं कि हमने अप्लाई किया सोम एल्गोरिथम और उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमने रन किया C विनर था। तो जब C विनर है, C ने वेट चेंज करने हैं, C के वेट चेंज होने हैं, तो C के वेट क्यों चेंज होंगे? सॉरी, ये पॉइंट दोबारा लेते हैं, बल्कि स्लाइड ही स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा। अब हमने एक टेबल ड्रॉ किया और हम ये इज्यूम करते हैं कि हमने एल्गोरिथम रन किया और उसके बाद जब ये वेट चेंज हो रहे हैं तो वो वेट चेंजेस किस तरह हो रहे हैं नाइबरहुड की इंफॉर्मेशन की बेस पे। अब हम देखते हैं अगर C विनर है तो C के साथ कौन से नाइबरहुड कनेक्टेड हैं जिसके वेट चेंज होने चाहिए, और वेट DT हमने क्या रखा हुआ है 1, मतलब ये कि कोई एक जो है उसका नाइबरहुड की वैल्यू चेंज हो, तो एक नाइबरहुड जो उसके साथ कनेक्टेड है उसकी वैल्यू चेंज हो।
तो क्योंकि सी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास सी के साथ कनेक्टेड कौन सा है, ए, वो यहाँ पर भी है, सी के साथ हमारे साथ ए कनेक्टेड है, इस वजह से सी और ए के वेट अपडेट होंगे। अब अगर हम सेकंड देखते हैं, सेकंड आइटरेशन में हमारे पास बी के वेट चेंज होने हैं। अगर तो बी के वेट चेंज हो रहे हैं तो बी के साथ कौन सा कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है, तो ए के भी वेट चेंज हो जाएंगे। अब हम दोबारा अगर रन करते हैं और देखते हैं कि ए के वेट चेंज होने चाहिए, ए विनर है, तो ए के अगर वेट चेंज हो रहे हैं तो ए के साथ बी और सी भी कनेक्टेड है, इस वजह से उनके वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगे। सेम इस तरह बी अगर है तो बी के साथ ए कनेक्टेड है तो ए के वैल्यू चेंज हो जाएंगे। फिर अगर ए है तो ए के साथ बी और सी हैं, उनके वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। सी है तो सी के साथ सिर्फ ए है तो उसके वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। फिर हम जो लर्निंग फैक्टर है उसको भी चेंज करते जा रहे हैं और हम साथ में जो नाइबरहुड है उसको भी चेंज करते जा रहे हैं, कितने नाइबर्स की वैल्यूज चेंज करने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम नाइबरहुड की इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो हम वो कैसे यूज़ करेंगे और वो किस तरह असरअंदाज होंगे। तो आज के लेक्चर को हम समराइज़ करते हैं। हमने आज अनसुपरवाइज लर्निंग को अंडरस्टैंड किया, इसका मतलब क्या है। हमने देखा कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, विदाउट एनी टीचर हम लर्निंग कर रहे होते हैं। हमें कोई ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम रियल लाइफ में देखते हैं कि लर्निंग हो रही होती है, तो वो हमने अंडरस्टैंड किया। और फिर हमने ये देखा कि एक एल्गोरिथम इस तरह के बहुत सारे हैं जो सेम इस तरह काम कर सकते हैं। उनमें से एक था सोम, और सोम को हमने अंडरस्टैंड किया और उसके बाद हमने उसके चंद एग्जांपल्स देखी। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर। आपको आइडिया बेसिक हो गया है कि सोम है क्या, अनसुपरवाइज लर्निंग है क्या। अब इसके लिए आप डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स को इस सोम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।